بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 22 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیل محل کی رقاصہ۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیہوان، مصنف ہے میرا راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 496 صفحات پر مشتمل ہے، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 22 صفحہ نمبر 321 سے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لوگ پراسرار قوتوں کے ساتھ ساتھ بے پناہ طاقت کے مالک تھے، چنانچہ میں نے یہ خیال اپنے ذہن سے خارج کر دیا کہ میں ان لوگوں کے خلاف کام کروں، اور اگر کبھی یہ صورتحال پیش آ ہی جاتی جس کا تذکرہ فلپ نے کیا تھا تو دیکھا جائے گا۔ اس وقت حالات کے تحت جو کچھ بھی ہوگا کیا جائے گا۔ اس وقت کم از کم دل میں کھوٹ رکھ کر ہی صحیح تنظیم کے اغراض و مقاصد سے متفق رہنا ضروری تھا، اور اس میں زندگی بھی تھی۔ لیکن سفید بلی کمبخت، اس تنظیم کا نام بھی سفید بلی ہی تھا، گویا اس سے جان بچنا مشکل تھی۔ بڑی پریشان کن بات تھی۔ اگر میں سفید بلی کے تصور کو اپنے ذہن سے خارج کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا، خاص طور پر اس تنظیم میں رہنے کے بعد یہ سب کچھ اور بھی ناممکن ہوتا۔ جو ہونا ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کیوں مصیبتوں کا شکار بنوں؟ ویسے بھی میری زندگی تھی ہی کتنی، صرف چند سانسیں ہی تو ہیں۔ ان سانسوں پر بلا وجہ کے بوجھ کیوں برداشت کروں؟ میرے ذہن میں بغاوت کا جذبہ ابھرا۔ ان لوگوں نے اس دنیا میں مجھے کیا دیا ہے جو میں ان لوگوں سے الگ رہ کر دنیا کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتا؟ میرا ذہن عجیب سے انداز میں الجھ گیا تھا۔ فلپ میری شکل دیکھ رہا تھا۔ ہمارے سامنے رکھی ہوئی کافی بھی ختم ہو چکی تھی اور ہم دونوں ہی خاموش تھے۔ تب فلپ نے کہا، تمہیں سوچنے کی پوری آزادی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ نہیں مسٹر فلپ، اب میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ پھر بھی کوئی فیصلہ تو تم نے کیا ہی ہوگا، یا پھر اگر نہ کرنا چاہو تو تم کو اس کے لیے وقت دیا جا سکتا ہے۔ نہیں مسٹر فلپ، میں نہیں جانتا کہ میرے حالات زندگی آپ کو معلوم ہے یا نہیں۔ آپ جیسے ذہین اور زیرک لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنا سخت مشکل کام ہے۔ میں ایک ایسا انسان ہوں جس کی زندگی کی ابتدا بالکل ہی مختلف انداز میں ہوئی تھی، پھر اسے دوسرے راستوں کو اختیار کرنا پڑا۔ دولت کے حصول کے لیے میں نے بے پناہ کوشش کی، اور اسی کوشش میں اس صحرائے اعظم میں آ پھنسا۔ اس کے بعد بھی میری تقدیر نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں بھٹکتا رہا، دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہا۔ آخر میں کب تک کھلونا بنا رہوں گا؟ چنانچہ مسٹر فلپ، تنظیم کے اغراض و مقاصد سے مجھے مکمل اعتماد ہے، اتفاق بھی ہے، اور اس کے لیے میں خلوص دل سے اس کے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہوں۔ فلپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ بولا، تنظیم میں شامل ہونے کے بعد تم خود کو دنیا کا طاقتور ترین انسان محسوس کرو گے، مجھے یقین ہے۔ اور میرے دوست، انسان پستیوں کی اس انتہا کو پہنچ گیا ہے جب اس نے اپنی ذات کو بھول کر دوسری چند چیزوں کو برتری دی ہے۔ اس میں دولت سب سے عظیم ہے۔ کیا تم میری بات محسوس نہیں کرتے کہ دولت کی چمک نے انسان سے اس کی بینائی چھین لی ہے؟ ہاں، مجھے اعتراف ہے۔ تم خود کچھ بھی ہو، اس وقت تک بے حقیقت ہو جب تک تمہاری ظاہری حیثیت کچھ نہ ہو۔ بے شک، تب تم پسماندہ کیوں رہو؟ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے سامنے جو لوگ خود کو برتر اور اعلیٰ ظاہر کرتے ہیں صرف اپنی دولت کے سہارے، انہوں نے یہ دولت کہاں سے حاصل کی؟ انہوں نے دولت کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ مجھے اعتراف ہے۔ تنظیم تمہیں مہذب دنیا میں بھیجے گی۔ تمہارے سپرد کوئی بھی کام دیا جائے گا تو تمہیں اسے کرنا ہوگا، اور تم ایک اعلیٰ مقام حاصل کر کے رہو گے۔ مجھے منظور ہے، لیکن اس کے بعد کوئی شے تمہیں تنظیم سے بغاوت پر نہیں اکسا سکتی۔ تمہیں ہر حال میں وفادار رہنا ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا مسٹر فلپ؟ پورے وثوق سے کہہ رہے ہو؟ ہاں۔ اس کے بعد اگر تم نے تنظیم سے بغاوت کی اور اس کے اغراض و مقاصد سے انحراف کیا تو تمہیں عبرتناک سزا ملے گی۔ میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں۔ اگر چاہو تو ہمارے درمیان دوستوں کی طرح رہ سکتے ہو۔ اگر تم اس کے لیے آمادہ نہ ہو تب بھی ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اس میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ گویا میں تمہارا فارم بھر لوں؟ ہاں، میری طرف سے اس عظیم مرتبے کی مبارکباد قبول کرو۔ فلپ نے کھڑے ہو کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ شکریہ فلپ۔ میں نے بھی گرم جوشی سے اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ فلپ نے ایک فارم نکالا اور اسے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق فارم بھر پر اس پر دستخط کر دیے اور پھر فارم کو فلپ کے حوالے کر دیا۔
फिलिप ने फार्म लेकर एक बार फिर मुझे मुबारकबाद दी। मैं ये फार्म ऊपर पहुंचा दूं, इसके बाद तुमसे दोबारा मुलाकात करूंगा, बेहतर मुझे इजाज़त दे। हाँ, अब आराम करो। और मैं फ़िलिप की रिहाइशगाह से चला आया, लेकिन मेरा जहन घूम रहा था। फ़िलिप से जो गुफ्तगू हुई थी उसने मेरे होश उड़ा दिए थे, लेकिन दुनिया मैं उससे भी तो इतना ही बेजार था कि फ़िलिप की बातों से इख्तलाफ नहीं कर सकता था। बिलाशुबा ये खतरनाक मुजरमों का गिरोह था। जो कुछ उन्होंने सोचा था वो बेहद खतरनाक था, लेकिन इनकी इन बातों पर मुझे एतराफ़ भी करना पड़ता था कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो उससे कहीं बदतर है। बहरहाल मैं अपने फ़ैसले पर शर्मिंदा नहीं था। इन लोगों का साथ देकर मैंने कोई गलती नहीं कर रहा था। अगर किसी तरह यहाँ से जान बच जाए और मैं बाद में इन लोगों के दरमियान से निकल जाऊँ तो क्या महज़ब दुनिया मेरी बकवास सुनेगी? और सुनेगी तो उसे क्या अहमियत देगी? हरगिज़ नहीं। मुझे पागल समझा जाएगा। सो ऐसे लोगों के लिए कुछ करना बेकार है। और मैं मुतमईन हो गया। दुनिया ने मेरे साथ जो कुछ किया है उसे लौटाने का वक्त आ गया है। फिर मैंने बकिया वक्त सुकून से गुजारने का फ़ैसला किया। इस फैसले का बाद मैं मुतमईन हो गया। एक बार फिर जोज़ी की याद आई और मैं उसकी तरफ चल पड़ा। जोज़ी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए। क्या हाल है जोज़ी? ठीक हूँ, उसने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। कोई खास बात है? हाँ आदिल। क्या बात है? आदिल, मेरी ख्वाहिश है कि तुम अब मुझसे ना मिला करो। और कोई खास वजह? हाँ आदिल, मैं इंसानों से खौफज़दा नहीं होती, लेकिन अगर तुम मुझसे मिलते रहे तो वो बदरू मुझे ठीक कर देगी। कोई आया था? सफ़ेद बिल्ली, जोज़ी ने कहा और मैं होंठ बेंच गया। क्या मतलब? तुम यकीन करो, पहले वो एक छोटी सी बिल्ली थी, लेकिन उसके बाद उसका जिस्म इतना बड़ा हो गया कि किसी बड़ी नस्ल का शेर हो। और उसके बाद जोज़ी ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। कैसी आवाज़? वो आवाज़ किसी बदरू की थी। हाँ, वो इंसानी आवाज़ नहीं थी, एक ऐसी गैर इंसानी आवाज़ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर उस आवाज़ ने गुर्राए हुए लहजे में मुझे वार्निंग दी। क्या वार्निंग दी? मैंने पूछा। उसने कहा, आदिल शाह का ख्याल छोड़ दो, वरना मुझे शदीद तकलीफ से शिकार होना पड़ेगा। उसने कहा कि वो मुझे मेरे हाथ पाँव से माजूर कर देगी। उसने ये भी कहा कि आदिल शाह उसका महबूब है और किसी रूह के महबूब को अपनाना आसान काम नहीं होता। वो मेरी ज़िंदगी को मौत की बदतरीन कैफियत से दो चार कर देगी। तुम नहीं जानते आदिल शाह कि मेरी क्या कैफियत हो गई थी। वक्ती तौर पर तो मैं पागल हो गई थी। मुझे हैरत है कि मेरा हार्ट फेल क्यों नहीं हुआ। मैंने होंठ बेंच कर कहा। और उसके बाद से तुम खौफज़दा हो? हाँ। तो फिर तुम क्या चाहती हो? देखो आदिल शाह, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारा कुर्ब भी चाहती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे अपनी ज़िंदगी अजीज़ है। आदिल प्लीज़, तुम आइंदा मुझे मत मिलना। ठीक है जोज़ी, अगर ये बात है तो मैं तुमसे आइंदा नहीं मिलूँगा, मैंने जवाब दिया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी और मेरी बात को महसूस ना करना, मैं भी मजबूर हूँ। हाँ, ज़िंदगी से सब मजबूर होते हैं, मैंने जवाब दिया और तेज़ी से पलट पड़ा। मुझे जोज़ी पर गुस्सा नहीं आया था, लेकिन ये सफ़ेद बिल्ली, इस बिल्ली ने तो मेरी ज़िंदगी हराम कर दी थी। और मैंने फ़ैसला कर दिया था कि आइंदा इस सफ़ेद बिल्ली से खुलकर मुकाबला करूँगा। यूँ भी अब मेरे मकासद बदल गए थे। बाकी वक्त मैंने इंतहाई कोफ्त के आलम में गुजारा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। शाम को जब सूरज ढल चुका था और फ़िज़ा पर गहरे गहरे बादल छाए हुए थे और मौसम बेहद खुशगवार हो गया था, दफ्तर मुझे फ़िलिप नज़र आया। उसकी जीप मेरी ही जानब चली आ रही थी। खूबसूरत जीप मेरे दरवाजे पर रोक कर वो नीचे उतरा और हाथ हिलाते हुए बोला, आओ मेरे दोस्त आदिल शाह, क्या तुम मौसम की दिलकशी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हो? लेकिन ये मौसम की बेकैफ़ी है फ़िलिप, मैं नाखुशगवार अंदाज में बोला। क्या मतलब? मतलब ये कि तन्हाई इंसान को रास नहीं आती। तो फिर तन्हा क्यों हो? फ़िलिप ने सवाल किया। इसलिए कि तुम्हारी इस दुनिया में अजनबी हूँ। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारी इस तावील को नहीं मानता। क्यों? तुम अब खुद को अजनबी क्यों समझते हो? तुम हम में से हो, हम में शामिल हो जाओ खुद ब खुद। नहीं, आओ मेरे साथ, यहाँ सब मौजूद है मेरे दोस्त, और बाहर की दुनिया में तुम्हारे पर पाबंदियाँ नहीं होंगी। वाह, क्या उम्दा बात है। मैं फ़िलिप के साथ जीप में बैठ गया और फ़िलिप ने जीप आगे बढ़ा दी। उम्दा सोच ज़रूरी है। हमने इंसान की कमज़ोरियों को पूरी तरह महसूस किया है और हम इस पर बेजा बोझ नहीं डाला करते। तुम आज़ाद दुनिया में रह कर काम करो, गलतियाँ भी करोगे, लेकिन हमने इन गलतियों के लिए कोई सज़ा नहीं रखी। इन गलतियों के सद्देबाब के लिए दूसरे इदारे मौजूद हैं जो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। यानी तुम जब कोई भी काम करोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगर तुम नाकाम रहे
तो तुम्हारी जिम्मेदारी ना होगी, क्योंकि तुम्हारी नाकामी को संभालने वाले दूसरे होंगे। वाकई ये इंतहा है। किस बात की? उम्दा सोच की। भाई, हमारे मकासद भी यही हैं। इंसान तो वैसे ही कमज़ोर है। इस लतीफ़ से बोझ को माफूकुल फितरत क्यों समझ लिया जाए? सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। और ये कि हर इंसान एक तरह से बेगुनाह और बेकसूर है। खूब, मैं दिल से कायल हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर पूछा, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हसीन शहर। ये कौन सी जगह है जहाँ हसीनों का झुरमुट होता है, जहाँ ज़िंदगी हर उलझन से आज़ाद होती है? फिलिप ने जवाब दिया और मेरे हलक से ठंडी सांस निकल गई। मैंने सोचा कि पता नहीं मेरी किस्मत में ये सब कुछ है या नहीं। मेरी किस्मत से तो एक बदरू चिमट गई थी, खैर जो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अब तो ये सफ़ेद बिल्ली मेरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा रोग बन गई थी। मेरी समझ में नहीं आता था क्या करूं। बार सूरत फिलिप के साथ चलते हुए अगले हालात पर गौर कर रहा था। हसीन शहर उस पहाड़ी दुनिया के आखिरी सिरे पर वाक़या था। ये एक इंतहाई खूबसूरत इमारत थी जो बहुत नीची थी, लेकिन जिसकी बनावट बहुत आला तर्ज पर की गई थी। हम इस इमारत के सामने पहुंच गए। फिलिप ने जीप रोक दी और उसे दूसरी गाड़ियों के साथ पार्क कर दिया। फिर वो नीचे उतरा और मेरा हाथ पकड़कर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। 3 चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ गई थीं और ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा बना हुआ था। इस दरवाजे के सामने एक दीवार थी। दीवार के दोनों जानब अंदर जाने के लिए रास्ता बना हुआ था। हम इन रास्तों से अंदर दाखिल हो गए, जहाँ ठंडी ठंडी रोशनी फैली हुई थी। बड़ा डिम सा माहौल था और इस डिम से माहौल में सामने ही एक स्टेज पर रकासा रक्स कर रही थी। कोई स्याफाम लड़की थी, लेकिन इंतहाई पुरकशिश हदोहाल की मालिक। इसका रक्स भी बड़ा ही हेजान हेज था। वो इसमें अरियानी नहीं थी, लेकिन एक ठंडी ठंडी आग थी जो वजूद को पिघलाए देती थी। दरमियान में नशिस्तें पड़ी हुई थी और इन नशिस्तों के दरमियान शराब सर्व हो रही थी। बेशुमार लड़कियां इधर उधर भटक रही थीं। इनमें स्याफात भी थी और सफ़ेद फाम भी। फिलिप मुझे लिए एक नशिस्त पर पहुंच गया। क्या पसंद करोगे? मैंने शराब कभी नहीं पी, मैंने मुस्कुरा कर कहा। और शबाब? हाँ, पीने की एक ही चीज़ तो है दिल में। तो आंख उठाओ और उसे जो पसंद आए उसे इशारा कर दो। मेरा ख्याल है फिलिप, आज तुम मेरी मदद करो। औरत की पहचान के लिए खिलाड़ी हो, ज़्यादा पुराना भी नहीं। सफ़ेद औरत पुरजोश नहीं होती। हमने इन कानी लड़कियों को दिलबरी सिखाई है और इन्होंने हर शोबे में सफ़ेद लड़कियों को मात दे दी है। बहुत खूब, अब इस रकासा को देख लो। हाँ, देख रहा हूँ। कैसी है? लाजवाब है। मैंने रकासा के नकूश देखे। इतनी पुरकशिश और जाज़बे निगाह थी कि नज़र नहीं ठहरती थी। मैंने पसंदीदी से गर्दन हिलाई। ये तुम्हारी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैंने कहा। और फिलिप हंसने लगा। फिर बोला, शराब क्यों नहीं पीते? बस कभी पी ही नहीं। आज पी कर देखो। बहक गया तो बहक जाना। बहक जाने के लिए ही लोग यहाँ आते हैं। होश की दुनिया इस चार दीवारी से बाहर है। मगर ठहरो, इस रकासा को अपने काम से फारिग हो जाने दो, फिलिप ने कहा और एक गुजरे हुए शख्स को इशारे से करीब बुला लिया। यस सर, रकासा को भेज देना। बहुत बेहतर जनाब, उसने कहा और आगे बढ़ गया। मौसीकी की धुन एक क्लाइमेक्स को पहुंच रही थी और रकासा के कदम भी तेज़ हो गए थे। फिर रक्स का आखिरी दौर शुरू हो गया। उसके बाद मौसीकी रुक गई, रकासा थम गई और यूं महसूस हुआ जैसे पूरा माहौल चंद लम्हात के लिए साकित हो गया हो। वो स्टेज के कोने की जानब चलेगी जहाँ अंदर जाने का रास्ता था। फिलिप मुस्कुराती निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। फिर से चुटकी बजाई और एक स्याफाम लड़की उसके सामने पहुंच गई। बैठो, फिलिप ने उसे इशारा किया। ये हमारे दोस्त आदिल हैं। बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। लड़की ने हाथ आगे बढ़ा दिया और मैंने उसका हाथ थाम लिया। और मिस्टर शाह आदिल, ये शेरालिया है, फ्रांस की रहने वाली, बहुत उम्दा रकासा है और बहुत अच्छी दोस्त। क्या मुझे मिस्टर आदिल की हमनशीनी हासिल होगी? शेरालिया ने पूछा। नहीं, मैंने तुम्हें अपने पास तलब किया है और ये बदज़ौकी है कि तुम मुझे ठुकरा कर अपनी पसंद के शख्स को देखो, फिलिप ने पुरमज़ा लहजे में कहा और वो हंसने लगी। मैंने महसूस किया था कि उसकी हंसी बहुत प्यारी थी। नहीं जनाब, भला मेरी ये मजाल, शेरालिया की हंस दी और मैं शर्मिंदा अंदाज में इधर उधर देखने लगा। बड़ा ही बेबाक माहौल था। कोई तकल्लुफ़, कोई आर नहीं थी। हर शख्स मस्तियों में मसरूफ़ था और किसी ने किसी की जानब तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन चंद साथ के बाद हमारे अकब में कोई आकर खड़ा हो गया और मैंने महसूस किया और पलट कर देखा। वही रक्कासा थी, स्याफाम हसीना, जो अब स्टेज पर जादू जगा रही थी। आओ आओ बैठो, फिलिप ने उसे देखते हुए कहा और लड़की सुकड़ती हुई मेरे नज़दीक बैठ गई।
یہ میرے دوست عادل شاہ ہیں اور تم؟ میرا نام نگینہ ہے اور تم عادل شاہ کی دوست ہو؟ دل و جان سے، نگینہ نے گردن جھکا کر کہا۔ اس کے سیاہ لمبے لمبے بال کھلے ہوئے تھے۔ اس کے پاس سے ایسی انوکھی خوشبو اٹھ رہی تھی جو بڑی ہی مسحور کن تھی۔ پھر وہ ہمارے نزدیک بیٹھ گئی۔ فلپ اب شیرالیہ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ کیا پئیں گے آپ؟ نگینہ نے پوچھا۔ ایسی کوئی شے جو خود کو بھلا دے۔ آپ خود کو بھول جانا چاہتے ہیں؟ ہاں۔ کیوں؟ بس ایک تصور ہے جو مٹا دینے کو خواہش مند ہوں۔ میں آپ کی مدد کروں؟ کرو، میں نے کہا، اور نگینہ نے کسی کو اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سامنے خوبصورت جگ آ گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی کچھ دوسرے برتن بھی۔ نگینہ کے بدن کی مہک میرے اندر نہ جانے کون کون سے احساس جگا رہی تھی، لیکن کبھی کبھی دل یک بارگی دھڑکنے لگتا۔ وہ منحوس بدروح، وہ مجھے کہاں سکون سے لینے دے گی؟ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اور اس احساس کو فنا کرنے کے لیے میں نے اپنا جگ اٹھا لیا۔ نگینہ نے پھر کہا اور آہستہ آہستہ چسکیاں لینے لگی۔ جب میں نے اپنا جگ خالی کر لیا، وہ مسکرائی اور میرا جام دوبارہ بھرنے لگی۔ بہت پیاسے معلوم ہوتے ہو۔ ہاں، میں آپ کی پیاس بجھا دوں گی، اس نے بڑی لگاوٹ سے کہا، اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں اس تصور کو ذہن سے فنا کر دینا چاہتا تھا جس نے میری روح کو مضطرب کر دیا تھا۔ خوف کا وہ احساس جو میری رگ رگ میں جاگزی تھا، مجھے پاگل کیے دے رہا تھا۔ لیکن میں شراب کی بدمستی میں غرق ہو کر اس دنیا کے وجود کو فراموش کر دینے کو خواہش مند تھا، اور شاید نگینہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں پورے ہوش و حواس میں تھا اور اسٹیج پر رقص کرنے والی دوسری رقاصہ کے فن سے پوری طرح محفوظ ہو رہا تھا، لیکن اب میرے ذہن سے وہ خوف یکسر نکل گیا تھا جس نے میری روح کو مضطرب کر دیا تھا۔ نہ جانے ہم کب تک پیتے رہے۔ حال میں اب چند لوگ رہ گئے تھے۔ کسی وقت فلپ اٹھ کر جا چکا تھا جسے میں نے محسوس نہیں کیا تھا۔ تب نگینہ نے اپنا خوبصورت ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب بس کرو، تم بہت پی چکے۔ لیکن میں پیاسا ہوں، میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ پیاس بجھانے کے لیے دنیا میں کچھ اور بھی تو ہے، نگینہ بولی۔ مثلاً؟ میں نے شراب آلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے مسکرائی اور میں سرشار ہو گیا۔ تو پھر میری روح کی پیاس بجھا دو، میں تمہارے جلتے ہوئے وجود کو سکون کے سمندر میں غرق کر دوں گی۔ میں اس کا طلبگار ہوں۔ اٹھو، نگینہ نے میرے بازو کو اپنے نازک ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا، اور میں کسی طرح اٹھ گیا۔ وہ مجھے عمارت کے اس حصے سے باہر لے آئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کے ساتھ کتنا فاصلہ طے کیا اور وہ رہائش گاہ یہاں سے کتنی دور تھی جہاں وہ مجھے لے کر گئی، جہاں پر میرے ہوش و حواس پر برف نہیں جمی ہوئی تھی۔ میں یہ محسوس کر سکتا تھا کہ میں اس کمرے کے ماحول کو بڑا ہی خوشگوار پایا۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف ایک چہرہ تھا، نگینہ، پرکشش چہرہ، اور ناک میں اور اس کے بدن کی بھینی بھینی خوشبو مسلسل پہنچ رہی تھی۔ تب میں نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ گویا تمہارا حصول میرے لیے ممکن ہے؟ میں نے سوال کیا، اور نگینہ کی کھنکھناتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونج اٹھی۔ میری بات کر رہے ہو عادل؟ ہاں نگینہ، میں تمہاری ہی بات کر رہا ہوں۔ کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں یقین کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں میری روح پر ایک خوف سا رہتا ہے۔ روح کے اس خوف کو مٹانا بھی تو مشکل نہیں ہے۔ کس طرح مٹاؤ گی نگینہ؟ میں تمہاری مدد کروں گی، اس نے کہا، اور آگے بڑھ کر میرے نزدیک پہنچ گئی۔ اس کی گرم گرم سانسیں میرے وجود پر چھا رہی تھیں۔ تب میں نے اسے گھسیٹ کر خود کے قریب کر لیا۔ نگینہ، کیا تم میرے وجود کی پیاس بجھا دو گی؟ ہاں، وہ صرف میں ہی ہوں جو تمہاری روح کی پیاس بجھا سکتی ہے، اس نے میرے وجود کو خود میں جذب کرتے ہوئے کہا، اور مجھے یوں لگا جیسے میں زندگی میں پہلی بار میں سیراب ہوا ہوں۔ رات بہتی رہی، شراب زائل ہوگی، جب میں نے محسوس کیا کہ رات ابھی کچھ باقی ہے اور نگینہ میرے پہلو میں موجود تھی۔ میں نے گردن اٹھا کے تعجب سے اسے دیکھا، اور خوشی کی ایک مسرت کی لہر میرے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ نگینہ، میں نے اسے آواز دی۔ ہاں، ایسی راتیں سونے کے لیے نہیں ہوتی۔ کب تک جاگتی رہوں؟ جب تک یہ خوف میرے ذہن سے دور نہ ہو جائے۔ کیسا خوف؟ تم کیسے خوف کی بات کر رہے ہو؟ میں تمہیں بتا نہیں سکتا نگینہ، لیکن میں ایک انوکھے خوف کا شکار ہوں۔ میں نے کہا، دیکھو عادل، محبت کرنا سیکھ لو، مٹ جانے والوں کی قدر کرنے لگو، ہر خوف سے بیگانہ ہو جاؤ گے۔ میں نہیں سمجھا نگینہ، میں سمجھا بھی نہیں سکتی۔ نہیں نگینہ، مجھے سمجھاؤ۔ کیا سمجھاؤ عادل شاہ؟ تم تو محبت کو ہی نہ سمجھے۔ بس میں کچھ نہیں جانتا نگینہ، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کوئی میری زندگی کو اس خوفناک بھنور سے نکال دے جس نے میری زندگی کو داغدار کر رکھا ہے۔ میں انسان ہوں، میں بھی اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، میں بھی جینا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے میری زندگی چھین لی گئی۔
ऐसा क्यों समझते हो आदिल शाह? नगीना, तुम नहीं जानती, मेरी रूह पर एक ऐसा खौफ मुसल्लत है जिसे मुझे ज़िंदगी और दुनिया से बेजार कर दिया है। वो खौफ कैसा है मुझे बताओ? नगीना ने कहा। एक अनोखी रूह, एक पुरस्रार हस्ती मेरी ज़ात पर मुसल्लत है जो नहीं चाहती मैं किसी भी औरत का कुर्ब हासिल करूं। क्या मतलब? हाँ नगीना, मैं औरत के कुर्ब के लिए परेशान हूँ, लेकिन वो रूह मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मुझे हैरत है कि तुम मेरे इतने नज़दीक कैसे आ गई। मैंने हैरत से उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों से आंसू लड़क गए, उसके गालों पर आ गए और मैं ताज्जुब से देखने लगा। नगीना, मैंने हैरत से उसे पुकारा। वो दोनों हाथों से मुंह छुपाकर सिसकियाँ लेने लगी। आदिल, तुम मुझसे इतने बेजार क्यों हो? क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा, और एक खौफनाक तस्वीर मेरे जहन में सरायत कर दी। आदिल शाह, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हालांकि मेरा मिशन कुछ और था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ भूल गई। मैंने अपनी कौम को फरामोश कर दिया। वो सिसकती रही। नगीना, मैंने मोहब्बत से कहा। आदिल, ये बताओ मुझ में क्या कमी है? तुम दुनिया में भटकना चाहते हो, आखिर क्यों? तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैंने पागलों की तरह कहा। हालांकि मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल साफ है। नहीं नगीना, मुझे बताओ, तुम मेरा चेहरा देख रहे हो? उसने दोनों हाथों से अपने चेहरे को हटाया। हाँ, मैं कौन सी नस्ल से ताल्लुक़ रखती हूँ? तुम स्या फाम हो। अपनी कौम के दूसरे लोगों की तरह मैं मुलाजमा नहीं थी, ना हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत की मारी हूँ। तुम्हारे प्यार के जाल में फंस गई हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारी महबूबा, वही बदनसीब जो सब कुछ तुम्हें देकर भी तुम्हारी मोहब्बत ना हासिल कर सकी। और तुम इतने संग दिल हो, तुम मुझसे अलग होना चाहते हो। और अब कुछ सोचने की फुर्सत नहीं थी, अब खुद को फरामोश कर देने की ताब नहीं थी। उसका मतलब मैं समझ गया था। तब मैंने अपना बायां पाँव खोलकर उसने मेरे सामने कर दिया। देखो, तुमने मुझे ज़ख्मी तक कर दिया। मैंने देखा उसके पाँव में एक पट्टी बंधी हुई थी। ये क्या है? तुमने मेरे ऊपर गोली चलाई थी ना, देखो मेरा पाँव ज़ख्मी हो गया, वो बोली, और मेरे दिल में नफ़रत की चिंगारियाँ बढ़ गई। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, शदीद नफ़रत, बेपनाह नफ़रत। इतनी नफ़रत के रोए ज़मीन पर कभी किसी ने किसी से इतनी नफ़रत ना की होगी। मैंने शदीद नफ़रत से कहा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, शदीद मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि इस रोए ज़मीन पर कभी किसी ने किसी से इतनी मोहब्बत ना की होगी। उसने रोते रोते मुस्कुरा कर कहा, और अजीब कैफियत थी। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे और होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैं उसे घूरता रहा। तब उसने अपना पाँव लड़क लिया और कहने लगी, मोहब्बत के जवाब में सिर्फ मोहब्बत ही तलब नहीं की जा सकती। लेकिन तुमसे एक बात ज़रूर पूछूंगी, आखिर तुम मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हो? इसलिए कि तुम मेरी रूह पर मुसल्लत हो गई हो। तुमने हर वो इक़दाम किया जो मुझे नापसंद था। कैसा इक़दाम? तुम मुझे ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने नहीं देना चाहती। तुम्हें क्या मालूम मैंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी है। मैं हमेशा महरूमी का शिकार रहा हूँ, लेकिन तुम इस काबिल नहीं कि मैं सिर्फ तुम पर इक्तफ़ा करूँ। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा कुर्ब। मैं औरत हूँ, और औरत चाहे कैसी भी हो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई दूसरी औरत उसकी जगह हासिल करे। तुम मेरे हो शादिल, हमेशा मेरे लिए ही रहोगे, चाहे तुम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ। मैं तुम्हें हासिल कर लूँगी, लेकिन औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस किसी औरत का वजूद तुम्हारे नज़दीक देखना नहीं चाहती। हालांकि ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? जब तुम्हें औरत की तलब हो तुम मुझे पकड़ लेना, नगीना ने कहा। मैं कह चुका हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और तुम्हारा कुर्ब भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आदिल शाह, मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतनी पागल हो गई हूँ कि अपने वजूद तक को भुला चुकी हूँ। जब मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है तो मैं अपनी ज़िंदगी के इस रुख को ज़रूर कामयाब बनाऊँगी। यहाँ तक कि इसकी कैफियत बदल गई। किस तरह? मैंने तंज़न पूछा। हर तरह। मैं तुम्हें हलाक कर दूँगा। नहीं कर सकते, ये तुम्हारे इख्तियार से बाहर है, लेकिन मैं हर उस औरत को हलाक कर दूँगी जो औरत की हैसियत से तुम्हारे नज़दीक आएगी। मैं तुम्हारा ताक़ुब नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों के तुम हमनवा बन गए हो। मैंने तुम्हें नहीं रोका, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। मैं तुमसे बगावत करूंगा और तुम देखोगी, अच्छी तरह देखोगी, तुम अच्छी तरह देख लोगी।
तुम भी देख लोगे शाह आदिल, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। मैंने जुनूनी अंदाज में उसकी गर्दन पकड़ ली थी। उस लम्हे के लिए उसके दोनों हाथ मेरे चेहरे पर आ जमे। उसका सांस रुकने लगा, लेकिन दूसरे लम्हे यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन मेरी उंगलियों में ढीली हो गई हो। उसका वजूद छोटा होने लगा, छोटा और छोटा, और फिर मैंने एक हल्की सी चीख मारकर इसके घुनौने वजूद को छोड़ दिया। और फिर सफ़ेद बिल्ली का वजूद मेरे हाथों में था और मैंने इसको ज़मीन पर छोड़ा। वो एक समत दौड़ती चली गई। मैं आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। मुझे इस सफ़ेद बिल्ली से बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। मेरे मुंह से सख्त परेशानी के आलम में निकला। उसकी जान लेना तो मेरे बस में नहीं था। मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। कोई तदबीर मेरे जहन में नहीं आती थी। सफ़ेद बिल्ली गायब हो चुकी थी। अब मैं कमरे में तन्हा रह गया था। देर तक मैं परेशानी के आलम में बैठा रहा। फिर मैंने एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह पर दराज हो गया। दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। फिर मैंने सोने की कोशिश शुरू कर दी। न जाने कब नींद आ गई। नींद ने मेरी जहनी कोफ्त कुछ देर के लिए मुझसे दूर कर दी थी। सुबह को जागा तो किसी कदर सुकून महसूस कर रहा था। जोजी से राब्ता ख़त्म हो गया था। मुझे वैसे भी ऐसी लड़कियों से कोई दिलचस्पी नहीं थी जो मोहब्बत के इतने बुलंदो और बांग दावे तो करें और उसके बाद किसी जानब से इस कदर खौफज़दा हो जाए कि सारे दावे ही भूल जाए। चुनांचे जोजी का खाना मैंने बंद कर दिया था। जाहिर है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। फ़िलिप अब मेरा गहरा दोस्त बन गया था। रात को हम दोनों एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ हो गए थे। सुबह ही सुबह उसका बुलावा आ गया। एक सफ़ेद फार्म शख्स मेरी रहायश घर पर पहुंचा। उसने मुझे सलाम किया। क्या बात है, मैंने पूछा। मिस्टर फ़िलिप ने कहा कि आप नाश्ता उनके साथ ही करें। कहाँ हैं वो? अपनी रहायश गाह पर। मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, मैंने जवाब दिया और मुलाजिम गर्दन झुकाकर वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद मैं तैयार होकर फ़िलिप की रहायश गाह पर पहुँच गया जहाँ वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। हेलो शाह आदिल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, मैंने एक उदास सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अरे क्या बात है, खुश नहीं हो? फ़िलिप ने गौर से मेरी शक्ल देखते हुए कहा और मैं एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मैंने सोचा नाश्ता आप ही के साथ करूं और तुम्हारी तबीयत मेरे ऊपर बुरी तरह से अंदाज हुई है। शुक्रिया फ़िलिप, लेकिन परेशान क्यों हो? कोई ख़ास बात नहीं है। कोई ख़ास बात तो ज़रूर है, और मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। रात को नगीना तुम्हारे साथ थी और वो पुरजोश स्याफ़ाम लड़की। तौबा तौबा, मैंने भी एक रात उसके साथ गुजारी है और दूसरी सुबह परेशानी का शिकार था। अरे नहीं फ़िलिप, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे हंसी आ गई। फिर क्या बात है? ज़रूर जानना चाहते हो? मैंने सवाल या निगाहों से उसे देखा। हाँ, ख्वाहिशमंद हूँ। अगर ज़रूरी समझो तो बता दो, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़ाती बात है और ना बताना चाहो तो कोई हर्ज भी नहीं। बात तो कतई ज़ाती है, लेकिन मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं। मुमकिन है इस सिलसिले में तुम मेरे मददगार बन जाओ। खूब, तुमने तो मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर दिया है, लेकिन क्यों ना हम पहले नाश्ता कर लें, उसके बाद इत्मीनान से गुफ्तगू करें। मुनासिब बात है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और फ़िलिप ने बेल बजाकर मुलाजिम को नाश्ता लगाने की हदायत कर दी। मिस्टर फ़िलिप, क्या तुम नगीना से अच्छी तरह वाकिफ़ हो? नाश्ते के दौरान मैंने दफ्तन अचानक फ़िलिप से सवाल किया। ज़ाहिर है यूँ भी इसका अंदाज़ा तुम रात को लगा चुके होगे। हाँ, अंदाज़ा तो हुआ था, लेकिन क्या? उसकी रिहाइश का कहाँ है? यही है। कोई बदतमीज़ी की उसने मुझे? बताओ तो सही, क्या बात है? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा फ़िलिप। नाश्ते के बाद हम इसकी रिहाइश का चलेंगे। तुम्हें कोई फौरी मसरूफियत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन न जाने क्यों तुम इस कदर उलझे हुए क्यों हो? मुझे इस पर शदीद हैरत है। उसके बाद खामोशी रही। हम लोग नाश्ते में मसरूफ़ रहे और थोड़ी देर के बाद नाश्ते से फारिग हो गए। चलें? फ़िलिप ने कहा। हाँ, मुमकिन है। मैं तुम्हें एक दिलचस्प तजर्बे से रोशनास कराऊंगा आज, मैंने फीके अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और फ़िलिप का चेहरा तजस्सुस का शिकार हो गया। थोड़ी देर के बाद जीप में हम नगीना की रहायशगाह की तरफ चले जा रहे थे। फ़िलिप ने रास्ते भर कोई बात मुझसे नहीं की। यूँ भी फासला बहुत मुख्तसर था। चंद साथ के बाद हम वहाँ पहुँच गए। दरवाजे पर एक दूसरी स्याफ़ाम लड़की से मुलाकात हुई। फ़िलिप को देखकर उसने एहतराम से सलाम किया था। नगीना अंदर मौजूद है? मौजूद है। उसे हमारे आने की इत्तला दो, फ़िलिप ने कहा, और स्याफ़ाम लड़की अंदर चली गई। फिर चंद साथ के बाद नगीना नज़र आई। उसे देखकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल धक से रह गया। उसके चेहरे पर होशहलाकी के आसार नज़र आ रहे थे। ओ मिस्टर फ़िलिप, अंदर तशरीफ़ लाइए। वो होशहलाकी से पीछे हट गई। फ़िलिप अंदर दाखिल हो गया। छोटे से खूबसूरत डाइनिंग हॉल में हम दोनों बैठ गए। नगीना हमारे सामने ही बैठ गई थी।
मेरे लायक कोई खिदमत? ये तुम्हारे दोस्त आदिल मुझे यहाँ लाए हैं, फिलिप ने कहा, और वो नगीना चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। अफसोस मेरा इनसे तारुफ नहीं है। हेलो मिस्टर आदिल, वो बोली, और फिलिप का हैरत से मुंह खुल गया। क्या कहा? तारुफ नहीं है? उसके मुंह से निकला और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। गोया मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। यही काम इस तंजीम के जहन में था, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल थी। मैं भी अगर इंसानियत की तबाही में बराबर का ज़िम्मेदार बन जाऊं, तो मैं जानता था कि मेरी अपनी हैसियत क्या है। अगर मैं इनसे इनहराफ करता तो मेरा ब्रेन वॉश कर दिया जाता और दुनिया में किसी दूर अफ्तादा गोशे में अजनबी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाता। चनाचा इस वक्त बेहतर यही था कि मैं इन लोगों का साथ दूं और सब कुछ भूल जाऊं। दुनिया खुद ही अपने दिफा के लिए कुछ कर लेगी, मगर मैं तन्हा इन लोगों के खिलाफ कुछ करने के लिए उठ खड़ा होता तो कभी कामयाब ना होता। दूसरी बात यह कि मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच सकती थी। चनाचा मैं अपनी जान क्यों गंवाऊँ? और मैंने उसी वक्त ही सोच लिया, और मैं अपनी सोच पर अब कारबंद रहना चाहता था। कि तुम एशिया से ताल्लुक़ रखते हो और हमारे हमदर्द नहीं हो सकते, फिलिप ने कहा, लेकिन उसके लहजे में मजाक था। फिर उसने जोजी की तरफ देखा और बोला, और आप मिस जोजी इस स्याफाम के साथ क्यों हो गई? मेरी मर्जी, मैं इस बूढ़े सुअर की तरह तंग नज़र नहीं हूँ। ओह मिस जोजी, लेकिन ये एशियाई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है।